Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Let's explore geography. Today we will discuss the second part of the chapter rotation and revolution. आज हम लोग second part के बारे में discuss करेंगे. If you have not watched the first video, you can go to the description box and check from there. Okay. Last day हम लोग discuss किए थे एपिहेलियन पेरीहेलियन तक. आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन. एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन. एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन का मीनिंग क्या है कि सन का जो मूवमेंट होता है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स ट्रॉपिक, अगेन ट्रॉपिक्स टू इक्वेटर. सो लेट्स सी. The overhead position of the sun moves from the equator towards the tropic and again returns to the equator is known as the apparent movement of the sun. इसका मीनिंग क्या है? सपोज अगर ये अर्थ है, इसका इक्वेटर, अर्थ का इक्वेटर, this is the tropic of Capricorn, this is the tropic of this is the tropic of Cancer, this is the tropic of Capricorn. Okay, and if it is the sun, so you can see sun rays overhead equator, then sun again moves towards tropic of Cancer, again sun moves towards tropic of Capricorn. एक बार सन इक्वेटर से टुवर्ड्स जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, फिर इक्वेटर के तरफ आ रहा है, अगेन जा रहा है टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ. सो इक्वेटर टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगेन इक्वेटर, देन अगेन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, देन अगेन इक्वेटर. ये जो सन का मूवमेंट होता है इन अ ईयर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन. ओके, आई हैव रिटन हियर वन वर्ड ट्रॉपिक्स. Why I have written here tropics? Because हम लोग देख सकते हैं एक बार जा रहा है टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगेन एक बार जा रहा है टुवर्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ओके, ये जो मूवमेंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन. Equinoxes. What is the meaning of equinoxes? Equinox, what is the meaning of equinox? Equinox, equi means equal. Okay, equi means equal or same. So equinox क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि the length of day and nights are equal. Okay, in a day there are two particular dates when sun rays are overheaded or on equator, and for this reason we can see equal length of day and night throughout the world. Okay, that's why this is called equinox. ये जो equinox है, equinox के जो दो particular date है, ये पर्टिकुलर डेट के ऊपर हम लोग क्या देख सकते हैं कि पूरे विश्व में 2 दिन ऐसा है जब हम लोग देख सकते हैं कि डे एंड नाइट ये दोनों का लेंथ इक्वल है. दैट मीन्स 12 आवर्स डे प्लस 12 आवर्स नाइट. ओके, 12 आवर्स डे 12 आवर्स नाइट. सो ये दोनों इम्पॉर्टेंट डेट कब है? 21st March, 23rd September. So on the basis of these 2 days we can divide equinoxes into 2 parts: vernal equinox, autumnal equinox. Vernal equinox also known as spring equinox. Okay, vernal equinox को हम लोग क्या कह सकते हैं? spring equinox भी कह सकते हैं. So on that particular 2 days sun rays are overheaded at the equator. For this reason on those particular days the length of day and nights are equal at all the places of the earth. These days are called equinox. Okay, equinox कहा जाता है इसको. On 21st March it is spring season in the northern hemisphere. That's why this equinox is called vernal equinox, because the northern hemisphere में तो spring season होता है. And on 23rd September it is autumn in the northern hemisphere. That's why it is also called autumnal equinoxes. So we will try to understand this concept with the help of this the diagram. ये डायग्राम से हम लोग ये जो कंसेप्ट है इसको समझने की कोशिश करेंगे. कैसे समझने की कोशिश करेंगे? देखो, ये जो सन है हम लोग क्या देख सकते हैं? ये जो सन है और ये है हम लोग का अर्थ. ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर, राइट. सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग देख सकते हैं 21st March, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग. एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में ये क्या है? ये ऑटम है. तो ये जो ऑटम है हम लोग ये टाइम में क्या देख सकते हैं कि सन रेज आर ओवर हेडेड
on equator, that means sun rays are vertical. Okay, सन 90 डिग्री एंगल में, वर्टिकल मीन्स ये 90 डिग्री एंगल में क्या कर रहा है ना, आर्थ के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर इसका सन रेज रेडिएट हो रहा है. तो इसको ये इसीलिए इसी कारण हम लोग क्या देख सकते हैं कि इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट थ्रू आउट द वर्ल्ड. ओके, सो why it is called spring equinox, I have told you already, because it is spring season in northern hemisphere. Okay, you know March is the spring season, so it is called autumnal spring equinox or vernal equinox. और अगर हम लोग ऑटमनल इक्विनॉक्स के बारे में डिस्कस करें तो क्या देख सकते हैं, ऑटमनल इक्विनॉक्स 23 सितंबर, ये जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तब यहाँ पर क्या सीज़न चल रहा है, ऑटम, एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में ये चल रहा है स्प्रिंग सीजन. सो इसीलिए हम लोग क्या देख सकते हैं कि क्योंकि ये ऑटम सीजन है इसीलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑटमनल इक्विनॉक्स. ये जो दिन है, ये दिन भी फिर से हम लोग देख सकते हैं 12 आवर्स डे 12 आवर्स नाइट. ठीक है, इक्वल डे, इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, 12 आवर्स डे 12 आवर्स नाइट. ठीक है, ये हम लोग देख सकते हैं. ये जो दो कॉन्सेप्ट है इक्विनॉक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स यू हैव टू लर्न इज वेरी वेरी केयरफुली. Dates of ephelion, perihelion, equinoxes, solstices, all these are important. Okay, next is solstices. Solstices meaning what solstice meaning, reaching to the top point. Solstices are naturally two types, summer solstice and winter solstice. Okay, so solstice का मतलब क्या है, solstice का मतलब होता है टॉप पॉइंट में पहुंच जाना. टॉप पॉइंट में पहुंच जाना मतलब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके ऊपर जब सन वर्टिकली रेडिएट करता है और ओवर रेडिएट होता है, वर्टिकल रेडिएशन देता है, इसको हम लोग कह सकते हैं सॉल्स्टिसेस. ठीक है, और ये टॉप पॉइंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो कैप्रिकॉर्न है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, दैट मीन्स टू जो ट्रॉपिक्स है इसके ऊपर वर्टिकली रेडिएट कर रहा है, इसके ऊपर टॉप पोजीशन से इसके ऊपर रेडिएट हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सॉल्स्टिसेस. ओके, so summer solstices and winter solstices, these names are given according to the season. Let's see what is summer solstice. On 21st June, due to the apparent movement of the sun, its rays are overrated on the tropic of Cancer. That means the sun radiates vertically on 23.5 degree north. On that day, the length of day is maximum on tropic of Cancer and length of night is minimum. What is the length of day? You can see here, length of day is 14 hours and night is 10 hours, so equal to 24 hours. Okay, as this is the summer season in the northern hemisphere, this is called summer solstice. According to the season, the name has given. I will explain by the diagram later. Wait. Next one is winter solstice. Winter solstice 22nd December. You know December is winter season. Sun rays again towards the southern hemisphere, moves towards the southern hemisphere and rays are overrated on the tropic of Capricorn. It means it radiates vertically. Vertically, you know, vertically means near about 90 degree. Okay, 23.5 degrees south. So on that particular day, the length of day is minimum in the northern hemisphere and night is maximum, and the opposite event occur in the southern hemisphere. That means in southern hemisphere में हम लोग देख सकते हैं डे का लेंथ सबसे ज़्यादा है. That means southern hemisphere में 14 आवर्स हो सकता है डे एंड 10 आवर्स हो सकता है नाइट. ओके, एंड ये साउदर्न हेमिस्फीयर के बारे में हम कह रहे हैं. और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, 10 आवर्स होगा डे एंड 14 आवर्स होगा नाइट इन केस ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ओके, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के इंसिडेंट है, तो जस्ट ऑपोजिट है. तो ये जो विंटर सॉल्स्टिस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब ये विंटर सीजन चल रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए इसका नाम है विंटर सॉल्स्टिस. ओके, लेट्स सी द डायग्राम. हम लोग देख सकते हैं ये डायग्राम है. ये जो देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब समर सीजन चल रहा है तब हम लोग क्या देख सकते हैं, समर सॉल्स्टिस, क्योंकि तब सन कहाँ पर जाके वर्टिकली रेडिएशन कर रहा है. अगर ये अर्थ है, ये अगर इक्वेटर है, अगर ये 23.5 डिग्री, अगर ये नॉर्थ 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड ये 23.5 डिग्री साउथ. ठीक है, ये 0 डिग्री 23.5 डिग्री. ठीक है, और ये 23.5 डिग्री
साउथ है। तो सन रेज ड्यूरिंग समर सॉल्स्टिस इसके ऊपर रेडिएट कर रहा है वर्टिकली, ठीक है, 90 डिग्री एंगल से रेडिएशन आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर लेंथ ऑफ डे इज मैक्सिमम 14 आवर्स, तो इसको हम लोग कह सकते हैं समर सॉल्स्टिस, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के टॉप पोजीशन से सन रेज हम लोग देख सकते हैं। और जो विंटर सॉल्स्टिस है तब हम लोग क्या देख सकते हैं, सन यहाँ पर सादर्न हेमिस्फीयर में मूव करके इसके ऊपर हम लोग क्या देख सकते हैं कि वर्टिकली सन जो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है इसके ऊपर वर्टिकली सन रेडिएट कर रहा है, दैट मीन्स फ्रॉम 90 डिग्री एंगल। सो इसीलिए इसको हम लोग विंटर सॉल्स्टिस कह सकते हैं, क्योंकि ये जो टाइम है ये टाइम में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या सीजन चल रहा है, हम लोग क्या देख सकते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तब क्या सीजन चल रहा है, ये देखो विंटर सीजन। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, विंटर सॉल्स्टिस। वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स, डोंट फॉरगेट टू लर्न दिस। नेक्स्ट वन इज twilight and dawn. Twilight and dawn are just the before time of sunset and sunrise. Okay, सन रेज जब होता है, सनराइज जब होता है, सनराइज के बिफोर का जो टाइम होता है तब हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, डॉन कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा टाइम ये नहीं है, ये पूरा टाइम हम लोग देख सकते हैं कि फ्रेश मॉर्निंग की तरह नहीं है, लिटिल बिट ट्रांजिशनल फेज ड्यू टू द डिफ्यूशन। ओके, लाइट जो सन रेज जो आ रहा है इसका डिफ्यूशन हो रहा है, डिफ्यूशन मीन्स प्रसार होना, लाइट का प्रसार होना। तो इसीलिए डिफ्यूशन के लिए जो एक्टिविटी है डिफ्यूशन, ओके, डिफ्यूज़ हो रहा है। सो डिफ्यूजन के दौर हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, इसको डॉन हम लोग देख सकते हैं। और जो ट्वाइलाइट है, वी कैन सी ट्वाइलाइट बिफोर सनसेट, ठीक है, बिफोर सनसेट वी कैन सी ट्वाइलाइट। ये भी एक ट्रांजिशनल टाइप का जो लाइट है, जो पूरा लाइट नाइट की तरह डार्क नहीं है और डे की तरह फ्रेश भी नहीं है। सो डिफ्यूशन के लिए ये जो एक्टिविटी है वो हो रहा है डिफ्यूशन, ठीक है, तो इसके लिए हो रहा है ये डिफ्यूशनल एक्टिविटी, इसीलिए हम लोग ट्वाइलाइट एंड डॉन देख सकते हैं। लाइट जो है डिफ्यूज्ड हो रहा है, इसीलिए हम लोग ट्वाइलाइट देख सकते हैं, ठीक है। ये जो एरो है हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो एरो है ये सनराइज के टाइम में हो रहा है, दैट मीन्स डॉन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। वेट, ये जो एरो है ये डॉन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और ये जो एरो है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ट्वाइलाइट, ठीक है, तो ट्वाइलाइट को इंडिकेट कर रहा है। सो इसे ग्राउंड के ऊपर आके ये जो लाइट है, ये जो सनलाइट है ग्राउंड के ऊपर आके पूरा स्प्रेड कर जा रहा है, पूरा स्प्रेड हो रहा है, प्रसार हो रहा है। तो इसीलिए ये जो टाइम है इसे हम लोग देख सकते हो तुम लोग की जो सन है ये थोड़ा सा ऑब्लिकली लोकेटेड है, नॉट फुल्ली वर्टिकल, ये जो देखो डायगोनली लोकेटेड है, ठीक है, डायगोनली लोकेटेड है। इसके लिए इस सन का जो लाइट है ये पूरा फैल जा रहा है यहाँ पर, इसलिए हम लोग क्या देख सकते हैं, ट्वाइलाइट एंड डॉन देख सकते हैं। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ टू एवरीबॉडी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। एंड इफ दिस वीडियो इज helpful for you, don't forget to subscribe our channel and like our video and stay with us. Thank you everybody.